नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साल 2019 में जब दुनिया भर ने कोविड की मार झेली तो भारत ने भी डट कर इसका मुकाबला किया है। अपने संसाधनों को मजबूत बनाते हुए भारत आगे बढ़ा। जहां पीपीई किट्स, मास्क बनाने में देश अग्रसर हुआ, वहीं आरोग्य सेतु ऐप जैसी ऐप ने सभी की मुश्किलें बहुत हद तक हल की। तकनीक के इस्तेमाल से इस लड़ाई को लड़ने में काफी बल मिला। इससे पहले भी तकनीकी क्षेत्र की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण आधार कार्ड बने। कैसे तकनीक के सही इस्तेमाल से नए उपयोगों को बल मिल रहा है और उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसी पर पेश है हमारा आज का ये खास कार्यक्रम और इसी पर हम आज के कार्यक्रम में अपनी चर्चा करेंगे। मैं हूं ज्योतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। Hello to you as well, Jyotika, and to all our viewers. In order to increase awareness about the usage of force in governance and government functioning and adoption of force, a virtual roundtable discussion, free and open source software in government, was organized by the Ministry of Electronics and Information Technology, that's METI, in collaboration with Omidyar Network India on the 22nd of April. How will the innovation challenge that was launched on that day accelerate adoption of free and open source software, that's FOSS, in government? Software that has built the Arogya Setu app and Aadhaar. What has the road towards this been like so far? How is Atmanirbharta to be achieved in this sector? We talk about this with our guest on the show. Hello and welcome. I'm Rukma with you. जी हाँ, और हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें। रुकमा, इससे पहले जानने की कोशिश कर लेते हैं कि एग्जैक्टली फॉस क्या है, क्या सॉफ्टवेयर है, इसके पीछे मकसद क्या है और किस तरह से ये हमारे पूरे सिस्टम को पूरी तरह से मदद पहुंचा रहा है। Right. Well, India, as we were telling you, is well positioned to become a vibrant hub for free, that's what the government believes, and open source software, that's FOSS innovations, due to the large number of 4G data subscribers. The Ministry of Electronics and Information Technology in this regard launched the FOSS for Gov challenge. Let's know more about it. Ministry of Electronics and Information Technology announced the hashtag FOSS for Gov Innovation Challenge to accelerate adoption of free and open source software, that's FOSS, in government on the 22nd of April. FOSS is free and open source software, and the challenge is based on the idea that India is well positioned to become a vibrant hub for free and open source software innovations due to the large number of 4G data subscribers in India, 96% of whom access the digital world via open source based mobile operating systems, primarily Android. Some of India's largest government projects, including Aadhaar and many technology startups, have also been built using FOSS. Acknowledging the huge potential of FOSS, the Government of India had issued a policy on adoption of open source software in 2015. और इसी पर और बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक सिंह, सीईओ हैं माईगॉव से। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक सिंह जी आपका। नमस्कार आत्मनिर्भर भारत हमारे खास कार्यक्रम में। हमने ये समझने की कोशिश की कि फॉस एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से काम करता है, इसके पीछे का मकसद क्या है। लंबे समय से इस पर काम भी होता आया है और बहुत बड़े उदाहरण इसने हमारे सामने रखे हैं। देश में आधार कार्ड है या फिर बात करें आरोग्य सेतु ऐप की भी बात की जाए, लेकिन सरल भाषा में अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं क्या है ये सॉफ्टवेयर, कैसे काम करता है और किस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है आने वाले समय में भी। धन्यवाद फॉस जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर एक आत्मनिर्भर भारत के तहत ये शो करने के लिए। और जैसा आपने बताया, फॉस एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर अडॉप्शन के लिए। पूछा जाए तो अगर क्या है, तो फॉस का फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बट जब हम इसमें फ्री की बात करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि इसकी कीमत नहीं होती है। फ्री का मतलब होता है फ्रीडम होता है इसको यूज करने का, और इसको यूज करने का जो फ्रीडम होता है उसके 3-4 मायने होते हैं। यूज करने के मतलब हर कोई इसका उपयोग कर सकता है बगैर किसी लाइसेंस के रिक्वायरमेंट के, बगैर किसी जोग्राफिकल लिमिटेशंस के ऊपर। इसको सोर्स कोड जो होता है, इसका जो कोड है जिसके तहत पे कोई सॉफ्टवेयर काम करता है, इसको हर व्यक्ति देख सकता है, हर व्यक्ति समझ सकता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, और इसमें कोई नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसको शेयर कर सकते हैं। जो व्यक्ति इसको यूज कर रहे हैं उसको न सिर्फ अपने काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बट उसको किसी और को शेयर कर सकते हैं विदाउट कोई अतिरिक्त कॉस्ट के बगैर।
और इसमें बस यही रहता है कि एक ही रिस्ट्रिक्शन होती है कि जब आप शेयर करते हैं तो जिसको देते हैं उसको भी वही अधिकार उपलब्ध हो जाते हैं इस्तेमाल करने के बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के जो आपको हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस के बगैर यूज करने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तो है कि इसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि इसको कोड अगर आपने देख लिया ये कैसे काम करता है तो इसमें अगर कोई सुधार लाने की जरूरत है तो आप सुधार भी ला सकते हैं। और जो आप सुधार लाते हैं वो सुधार सभी पूरी कम्युनिटी के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो ये एक तरह से वर्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कम्युनिटी बन जाती है कि सब लोग मिल करके एक सॉफ्टवेयर पे एक साथ काम करते हैं, उसका उपयोग करते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस की और उसको इम्प्रूव करने में समय समय पे कंट्रीब्यूट करते हैं। और दुनिया भर में जैसे एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, आज देखेंगे भारत में जितने मोबाइल फोन होते हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है करीब 85 से 90% मोबाइल फोन पे एंड्रॉयड का सिस्टम होता है। तो एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल ने बनाया था, बट उन्होंने फिर इसको फ्रीली अवेलेबल कर दिया। तो आज कोई भी फोन हो, सैमसंग का हो या फिर वन प्लस का हो, ये सारे फोन एंड्रॉयड को ही यूज करते हैं जी। और इसका कंपैरिजन है आईफोन। जैसे आईफोन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उससे टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन तेजी से होता है, उसमें इनोवेशन जल्दी होता है और उसमें बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करके उसको सुधारने में सफल हो पाते हैं। Right, Abhishek ji, when we talk about the Force for Gov Innovation Challenge, what are we basically talking about? Who would be your target, the target that the people that you would be reaching out for, the categories of IT engineers or students? Tell us more about it. See, the Force for Gov Innovation Challenge has been launched in order to harness the potential that exists in our Indian entrepreneurs and software developers across the country. What we have observed in the last year especially, and in the recent times, is that the capacity to build software which has got world-class capability and the state-of-art functionalities is there in India, but somehow because of competition from bigger players, they are not able to come out and reach the same levels as the existing products are. So in this regard, we have been launching several innovation challenges since last year. We had the video conference innovation challenge in which we identified 4 Atmanirbhar solutions for video conference meetings. Then we had the app innovation challenge in which we launched several social media apps and apps in other categories like education, healthcare, fitness, work from home, businesses. So these apps were identified in the app innovation challenge. In the AI artificial intelligence summit also innovation challenge for AI solutions, and these also became very useful, very popular. In the same spirit, in order to give recognition to products developed by Indian entrepreneurs in the free and open source software domain, we have launched a FOSS for Gov Innovation Challenge, which will be held in 2 categories. One will be for ERP solution, and the second one will be for CRM solutions. So there are ERPs and CRMs that are being used by various government departments to identify such products. This innovation challenge will be open in a few days, and then startups and entrepreneurs will be able to submit their products. Then there will be a jury comprising of industry, academia, and government who will be evaluating these solutions, and the best ones will be rewarded, and then it will be made available on the GEM platform for governments across the country, state governments and other departments to adopt it, use it, and ensure that they are able to do things better than the existing proprietary software products for these categories. Right. अभिषेक जी, चर्चा हम जारी रखेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए आत्मनिर्भर भारत। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी डूबी डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली पतली डिलिशियस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं अभिषेक सिंह, CEO MyGov से। अभिषेक, हम बात कर रहे थे प्रमोशन ऑफ फॉस, किस तरह से ये हेल्प करेगा डिफरेंट अगर क्षेत्रों की बात की जाए, डिफरेंट सेक्टर्स की बात की जाए, हेल्थ की, एजुकेशन की, फाइनेंस की, क्या इसके पीछे मकसद है कि जो प्रिवेसी सेंट्रिक काम है और जो सिक्योरिटी ट्रस्ट बेस्ड कंप्यूटिंग है उसको प्रमोट किया जाए ज्यादा से ज्यादा?
जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें जो कि ये फैसिलिटी देता है हर व्यक्ति को कोड देखने के लिए और हर व्यक्ति को इसको डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो इसके मामले में कई बार लोगों में ये भ्रांति आ जाती है ये उतना सिक्योर नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटी जो होती है वो नेसेसरी प्रोटोकॉल से सुनिश्चित की जाती है, और आज हमारे देश में फॉस के ऊपर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर आधार कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हमारा एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसके तहत यूपीआई हम यूज करते हैं, वह भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। डिजी लॉकर प्रोजेक्ट है, वह भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज होता है। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन में जो काम हो रहा है, जो विभिन्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन की जो टूल्स डेवलप होंगे, वो भी फॉस के ऊपर डेवलप किए जा रहे हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में फॉस का उपयोग हो रहा है। जो हमने तमाम एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म जो बनाया, जिसके तहत एजुकेशन की सर्विसेज दी जा रही हैं, वह भी फॉस के ऊपर डेवलप किया गया है। तो फॉस एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसका विभिन्न तरह से एप्लीकेशंस किया जा सकता है। तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स में, केरला हो या तमिलनाडु हो या असम हो, वहाँ हर तरह का फॉस का एप्लीकेशन किया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स में अब बच्चों को स्टार्टिंग एजुकेशन जो होती है उस पर, बजाय इसके कि हम कोई प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाएं, बजाय इसके कि हम विंडोज और एप्पल के बारे में पढ़ाएं, उनको लिनक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। उसको यूज करना कॉस्ट भी कम होती है, सिक्योर भी ज्यादा होता है, फंक्शनलिटीज भी अच्छी होती हैं। इसी तरह ईमेल के सॉल्यूशंस हैं जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज हो रहे हैं। तो हर क्षेत्र में इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसको यूज करने से ना सिर्फ रिसोर्सेज की बचत होती है, बल्कि इनोवेशंस को बढ़ावा मिलता है। और जब एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है कोई कोड जिसके ऊपर वह काम कर सकते हैं, तो उसको हेल्प करने में अपना योगदान दे पाते हैं। आरोग्य सेतु का भी जब कोड ओपन सोर्स किया गया तो हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें सजेशंस मिले कि हम इसमें इस कदम को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, और किसी एक चीज ऑपरेशन को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो ये जो क्राउड सोर्सिंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और डेवलपर कम्युनिटी से एंगेज करना है, इससे हमारे जो गवर्टेक के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छा बनने की संभावना होती है। इसमें कुछ बॉटलनेक्स हैं जिसकी वजह से फॉस का अडॉप्शन इतनी तेजी से नहीं हो पाया है। उसका एक प्रमुख कारण होता है लोगों में इसके बारे में जानकारी का अभाव होना। तो भारत सरकार ये जो गव फॉर चैलेंज करने जा रही है, इनोवेशन चैलेंज, वो फॉस फॉर गव, उसके माध्यम से इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा। इसके बारे में कैपेसिटी की भी इश्यू होती है कि कितने लोग इसको समझते हैं। तो उसके लिए बच्चों को स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज के समय तक फॉस के बारे में पढ़ाने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जो परसेप्शंस है या जो भ्रांतियां होती हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। और जब हम इन प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को ज़्यादा अवगत कराएंगे, तब हम इनका भरपूर लाभ होने में सफल हो पाएंगे। Right, Abhishek. Well, one of the premises on which the ministry has based the innovation challenge, the launching of the innovation challenge, is that 96% of subscribers in India who access digital content do so through mobile operating systems. What does that mean? Because when we are talking about cyberspace, when we are talking about cyber innovations, there are really no barriers. That's what we believe. So it's all available perhaps in the cloud, or and can be accessed anywhere. So how does the fact that we are a nation with 96% subscribers using mobile operating systems, how does that qualify us to become a vibrant hub for FOSS innovations? See, that statement primarily means that when 96% people are using internet services through the mobile phones, this also means that they are using mobile operating systems. And of the entire mobile subscribers in India, almost 85 to 90% of them are on Android devices. And since Android is a free and open source software, and people are using the Android operating system, which is based on FOSS, this means there are no issues with regard to its use, its adaptation, and security issues. So one should not get concerned. So whenever we want to use FOSS solutions for any other product, suppose for desktop operating systems. So while the 90% of mobile operating system is based on FOSS, but the same is not applicable for the device operating systems. So for laptop or for desktops, so when you use operating system on desktops and laptops, most people are using either Windows or they are using
Mac OS operating system, Apple's Mac operating system. And these two operating systems are proprietary operating systems. They cost a lot of money, and people are not aware that there is a free operating system which is available. There is Linux which is available. There is LibreOS which is available. The government of India, CDAC, had made Bharat operating system a long back, but somehow the adoption rates of the operating systems on laptops and mobile and on desktops is much lesser compared to the adoption of operating systems on mobile phones. So the argument there is that just like we can use Android on a mobile operating system, which is a FOSS system, there's no reason we should not be able to use a free and open source operating system on a laptop. There's a small company from Assam, Guwahati, which has developed a very nice operating system for laptops and desktops. It's called SuperX. And yesterday we had a presentation by that company in our roundtable. And there is what we need to do is to talk about that, to talk about homegrown solutions in this domain. And there is no reason a FOSS-based operating system for mobile phones also can be developed in India. So that's the potential that we are talking of. There is no barrier as far as features and security is concerned. Only thing that we need is more awareness and dismantling certain myths and perceptions that people may have about security issues with FOSS products. Right. हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ शुभेंदु शर्मा हैं, आप फाउंडर हैं वाईफाई डब्बा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और साथ ही हमारे साथ हैं अनुज कुमार अग्रवाल, आईटी एक्सपर्ट हैं। शुभेंदु जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कैसे आप रोशनी डालेंगे अपने शब्दों में इस पूरे सॉफ्टवेयर पर, फॉस सॉफ्टवेयर पर, जिस तरह से जो इसकी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पर टिके हैं और बहुत कामयाब जो परिणाम है निकलकर सामने आए हैं? दर्शकों को थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। अगर मैं फॉस की बात करूं और जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है इस दिशा में, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। अगर आप दुनिया भर में नज़र डालेंगे तो एक ओपन सोर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट करती है लगातार। और एक ये निर्णय लेना कि पेड सॉफ्टवेयर से मूव करना टुवर्ड्स ओपन सोर्स, ये दिखलाता है कि गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, फ्रीलांस डेवलपर्स हो चाहे छोटे से छोटे शहर में लोग हों, वो इस तकनीक के साथ जुड़ सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें आत्मनिर्भर भारत की तरफ, जहां भारत जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में जाना चाहता है, अब ओपन सोर्स में भी जाना जा सके ताकि छोटे से छोटा डेवलपर अपने कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ सके। तो अगर आप हमारी बात करेंगे, हम लोग वाईफाई डब्बा में बहुत टाइम से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और इसके जो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आप एक कम्युनिटी के साथ जब काम करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है और वो स्ट्रांग होता चला जाता है, क्योंकि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, सिक्योरिटी थ्रेट्स अपने आप कवर होते रहते हैं क्योंकि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आपको एक स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगर आपको स्केलेबल जैसे अगर आप देखें आधार ले लें, यूपीआई ले लें, सभी प्लेटफॉर्म्स जो हैं ओपन सोर्स फॉस के ऊपर ही डेवलप किए गए हैं। तो एक ये राइट कदम है और एक राइट दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है इस नीति के साथ, और मेरे ख्याल से बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है ये। और जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा, आई थिंक बहुत लोगों को जोड़ेगा। जितना लोग इसके बारे में जानेंगे उतने लोग डेवलपर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और एक सबके लिए विन विन सिचुएशन बन के आएगी। तो मेरे तरफ से बहुत ही पॉजिटिव कदम है। Right, a very positive step. Abhishek ji, when we talk about the government inviting innovations in FOSS as far as governance is concerned, which are the critical areas that the government is very keen to invest in this regard? Which are the critical areas that have not yet been explored and which the government is very keen to ensure they are? See, there are several areas in which this can be done. This time, like in the first phase, we are launching this innovation challenge in the field of open source solutions for CRM, because CRM is something which is part and parcel of every system that we build now. Because when citizens access services, they would want to know what happened to a service request and all. So customer relationship management is not something that only private sector companies do, but that's something which the government also needs to do. So nowadays, whether it's the Aadhaar project or whether it's the Arogya Setu or the vaccination CoWIN platform or the Umang platform or any digital services that we are offering, we must have a
follow-up mechanism with regard to grievances that citizens may have. So that's a very important part of that. And many projects which were implemented earlier, they did not consider CRM as an important component. And very often citizens will get frustrated in their interactions with the government. So we thought CRM is an area in which a lot of open source solutions are available. So why not we identify a few Indian entrepreneurs who have worked on a FOSS-based CRM system and ensure that they are recognized and they are also placed on the government e-marketplace, so that any government department tomorrow, if they want to integrate a CRM solution with their IT service delivery platform, they should be able to do that by picking up the FOSS piece on CRM on that. And the way we are trying to look at FOSS is that they are like Lego pieces for various kinds of services. How can we pick and play and build services on top of it? So that's the whole approach in the way we are architecting the thing, that let people know that these are available. And once a company or a product wins a government innovation challenge, it gets noticed. People are aware that this is something which has been approved by the government. There are no issues with regard to, and they should not have any doubts with regard to the security or with regard to other parameters, and then start using it. So it's the twin objectives of this: one, to promote innovation and entrepreneurship among our companies, and number two, to speeden the pace of adoption of FOSS in government contracts. Because very often the RFPs are written and in such a way that the FOSS solutions get ignored. So we are trying to dispel that notion and trying to break those myths and trying to promote the FOSS-based products in the government ecosystem. So in the first phase, of course, ERP is again also like very often people don't link FOSS-based solutions to ERP solutions, but there are products which are available. So we have picked up ERP and CRM in the first phase, and as we go along, there will be other domains in which FOSS-based innovation challenges will be launched. Right. अनुज कुमार जी भी हमारे साथ हैं, आईटी एक्सपर्ट, उनसे बात करते हैं। अनुज जी, जिस तरह से अभी अभिषेक सिंह जी बता रहे थे कि इसकी सिक्योरिटी और इसकी सेफ्टी को लेकर लोगों में कुछ शंका थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओपन सोर्स है, लेकिन इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा सवाल नहीं उठते हुए दिखाई दे रहा है। आईटी एक्सपर्ट, आप किस तरह से रोशनी डालेंगे इस पूरे सॉफ्टवेयर पर? सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका जो फंडामेंटल है वो ये है कि जो लाइसेंस डेवलपर देते हैं उसके तहत कोई भी व्यक्ति उसके सोर्स कोड को लेकर अपना वर्जन तैयार कर सकता है और उसके लिए कोई उसे लाइसेंस फीस नहीं देनी होती है, जो इसका एक बेसिक प्रमाइस है। और जहां तक इसके इस्तेमाल की बात है, तो बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी सॉफ्टवेयर आज ओपन सोर्स में अवेलेबल हैं। डेटाबेस में PGSQL है, MySQL है, जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट का हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो चलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट चलती हैं। और जहां तक सुरक्षा का सवाल अगर मैं कहूं, तो जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं और जो ओपन सोर्स हैं वो बराबर ही अच्छे हैं और बराबर ही वल्नरेबल हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो वल्नरेबिलिटी है वो जो डेवलपर होते हैं वो उन पे डिपेंड करती है कि जब वो सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सोर्स कोड को लिख रहे हैं, वो कितने सतर्क हैं सुरक्षा के प्रति। क्या वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी पर ध्यान दे रहे हैं या वो सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान दे रहे हैं? तो ये इस पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि वो क्योंकि वो ओपन सोर्स है या उनका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है इसलिए वो वल्नरेबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Right. Coming to you, Mr. Shubhendu, when we talk about a challenge like the FOSS Innovation Challenge, how does a company like yours look at such a challenge when it comes to exploring new territory, exploring untapped territory as far as educating the masses, as far as reaching out, as far as internet education is concerned, Atmanirbharta, can we say, as far as making a difference in the internet world, making a difference to cyber apps, say, how does a challenge like this help? Ma'am, certainly it helps a lot for startups like ours. If you look at a lot of these competitions, the hackathons which keep happening, so we internally as a company, as a startup, have these policies where our developers do participate in these contests, and it keeps them motivated, it keeps them engaged, rather than just focusing on the, the everyday same job. They get engaged, and that is the biggest,
motivation for these young developers, where they see that their work is getting acknowledged, their work is getting recognized. And when when the challenges, the hackathons such as this comes from the government platform, their side, they're even more excited to participate, which gives them due recognition. You have to look at the psychology of these young developers. They are not just working for money, but they are working for recognition as well. They want to be contributing to the society back. They want to, look at the other, the open source community work that is happening. They keep contributing to those. So this is a cultural shift that we are looking at, that we are seeing in this generation, where these young developers are not just working for money, but are working for recognition as well. So this challenges like these, the FOSS open source challenge that government has started, I think is again one such initiative that will help get the due recognition for a lot of young developers, for college developers, the students who are working towards this. And if we can reach the right audience, if we can market this in the right, colleges, engineering colleges and other places, I think it has a great future, and it could be an annual event. I won't be surprised going forward. राइट हमारी ये चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए DD न्यूज़। Stay tuned, we'll be right back. खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill. I'm cool, chill your bill. I'm cool, chill your bill. स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं FOSS सॉफ्टवेयर पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन विशेष मेहमान बने हुए। हमारे साथ अभिषेक सिंह है, CEO MyGov से हैं, शुभेंदु शर्मा है, फाउंडर वाईफाई डब्बा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और अनुज कुमार अग्रवाल जी हैं, IT एक्सपर्ट। अनुज जी, आपके पास आना चाहूंगे अगले सवाल के लिए। जिस तरह से अभी शुभेंदु से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इसकी अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी जो रीच है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर चाहे वो कॉलेज लेवल की बात की जाए, यूनिवर्सिटी लेवल की बात की जाए, इवन स्कूल लेवल्स की भी बात की जाए, क्योंकि हर क्षेत्र के साथ आज टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है। और जिस तरह से हम डिजिटल भारत की बात करते हैं और जिसकी ओर हम अग्रसर है, उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस अवेयरनेस को ग्रास रूट लेवल तक ले जाना। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत अच्छी बात उठाई है। देखिए, जहां हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत एक विकासशील देश है, और हमारे यहाँ बहुत सारे छात्राएं जो हैं आर्थिक रूप से अभी बहुत संपन्न नहीं कहे जा सकते, लेकिन उनमें टैलेंट भरा पड़ा है हमारे देश में, गांवों में, दूर दूर तक। तो उसमें जो FOSS सॉफ्टवेयर है, जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस उनके लिए बढ़ाई जाए तो वो वंडर्स कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि हमारा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का है, वो UIDAI का जो पूरा प्रोजेक्ट हुआ है, उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का काफी इस्तेमाल किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का और एक बहुत ही सफल पूरे विश्व में एक उदाहरण के तौर पे दिया जाने वाला एक कार्यक्रम है, और वो बहुत ही सफल रूप से काम कर रहा है। तो अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवेयरनेस को बढ़ाएं, उसकी मान्यता को बढ़ाएं, स्कूल कॉलेजेस में जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहित करें, और उसके बारे में जो कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे सुरक्षा को लेकर आपने भ्रांति एक बताई, उसको अगर दूर किया जाए, क्योंकि इसका मुकाबला है जो ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, जहां पर अरबों खरबों रुपए का पब्लिसिटी का बजट होता है। तो उसके मुकाबले अगर डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं की, कॉलेजेस की ओर से ओपन सोर्स को बढ़ावा दिया जाए, तो निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया के जो हमारा प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने में बहुत सफलता मिलेगी। हमारे देश में जो IT की टैलेंट है उसको निखारने में, नए नए सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाने में, और जैसे कि हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स को शुरू करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास फंड्स की कमी होती है शुरू में खास तौर पे। और अगर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उनको लाइसेंस पे, सॉफ्टवेयर लाइसेंस पे मोटा खर्चा शुरू में नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफी महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इस प्रकार से लाइनेक्स है या ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करके, MySQL है और तमाम जावा प्लेटफॉर्म है, जो कि काफी हद तक ओपन सोर्स की तरह से यूज किए जा सकते हैं।
जिसमें लाइसेंस का खर्चा नहीं आता है, उसको यूज किया जाए तो डिजिटल इंडिया को बढ़ाने में, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में और छात्रों को नए नए प्रोडक्ट बनाने में बहुत प्रोत्साहन मिले। Right. Coming to you, Abhishek ji, when we talk about innovations like Aadhaar, when we talk about innovations like the Arogya Setu app, they are great achievements. However, would you agree if I said that they are still in nascent stages when compared to many developed countries that are using FOSS in governance? So, would you say that we are as yet in the initial stages of this kind of a culture of innovation in as far as information technology innovations are concerned? Well, while if you look at the application of FOSS in the true sense of FOSS, I would agree to your statement. Like while the intent is there of many departments and many projects of exposing the source code, but maturing to a level in which you can engage directly with the developer community to the extent that they start improving the code, pushing those improvement requests to the GitHub or to the OpenForge repository that we have, and then we accept those requests and then integrate it in our software. To that level, we are yet to mature on. But the endeavor of METI and the endeavor of this roundtable and the FOSS for Innovation challenges to remove certain misgivings and certain perceptions that people may have. What may happen if I expose the code? If I expose it, ultimately it will become better only. We need to have the relevant capacity, relevant abilities within us to engage with the developer community, see what is going to work well for us, see what is we are not going to accept, and work on that. So that culture is evolving, and I must say we are on the right track. But there is a lot of journey to be covered before we can say that we have truly become a FOSS-based GovTech solutions. Right now, what we are driving is to hasten the adoption by telling people, yes, there are free and open source products which are available, which can manage your, say, for example, finances, state finances. In fact, Himachal Pradesh is using a FOSS-based tool for doing that with the help of a company called Civic Data Labs. There is Samagra, another small company which is building FOSS-based solutions which are being used in Haryana for various services. So the DigiLocker is based on free and open source software. So there are examples off and on, but if you want to say that how far we have been, there's a lot of journey to be covered. Still, if you look at all government systems, most of them are working either Mac operating system or Windows operating system. When we know that Linux exists, Bharat operating system exists. So those things, those changes are yet to be done. So while it's we have started the journey, but cover the entire distance to become a truly FOSS based software product nation, a lot more work needs to be done. राइट शुभेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभिषेक जी बता रहे थे कि अभी लंबा रास्ता हमें तय करना है अगर इनोवेशन की ही बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके शुरुआती चरण की बात करूं, क्या चैलेंजेस आपने देखे, क्या चुनौतियां आपने देखी और किस तरह से उन चुनौतियों को पार पाया? और अगर बाकी सेक्टर्स की भी बात की जाए, खासकर अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, आज के माहौल पे जब हम कोविड की स्थिति से दो चार हो रहे हैं, ऐसे में हमारी सारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन है, हमारा जो आईटी सेक्टर है वो सारा ऑनलाइन है, और वो इस तरह के जब सोर्सेज को अडॉप्ट करते हैं, ओपन सोर्सेज को, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं और किस तरह से उन चैलेंजेस से हम दो चार होते हैं, कैसे उनको पूरा कर पाएंगे? इसके लिए मैं अनुज जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले शुभेंदु जी आपसे जानना चाहेंगे क्या वो चुनौतियां थी जिनको आपने फेस किया शुरुआती दौर में? जी बिल्कुल मैडम, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, ये मेरी तीसरी स्टार्टअप है। मैं 2010 से स्टार्टअप्स कर रहा हूं, मेरी तीसरी कंपनी है। जब मैंने, जैसा अनुज जी पहले बता रहे थे कि डिस्कवरी बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज ओवर हेयर, 2010 के अंदर वी हैड टू स्पेंड अच्छा खासा अमाउंट ऑन बाइंग द लाइसेंसेस फॉर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन सॉफ्टवेयर्स का, बट हमें मालूम नहीं था, कोई हमारे अराउंड, हमारे पता नहीं था कि क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं। So we had spent a good amount on purchasing those softwares and operating systems, licenses. अगर हमें वो उस वक्त 2010-2011 में हमें मालूम होता ओपन सोर्स के बारे में, तो शायद हमने एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर पाते और वो और जगह यूज कर पाते जहां उसकी ज्यादा जरूरत थी। कि आते आते 2015 में जब मैंने दूसरी कंपनी करी अपनी,
तब तक मैं बहुत कुछ सीख चुका था इस विषय के बारे में, और मुझे मालूम था कि कैसे मैं कॉस्ट सेव कर सकता हूँ अगर मैं फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करता हूँ। 2015 से और आज तक हमारी कंपनी के कल्चर के अंदर हम लाइनेक्स के ऊपर काम करते हैं, प्योर सिस्टम्स हमारे खुद बिल्ड करते हैं, हम ओपन सोर्स कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक डिस्कवरी जो है, जो एक अगेन बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट कर पाती हैं अपने प्रोडक्ट को, उसके अगेंस्ट अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट कर पाती हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट कर पाती हैं, और वहां से वो पूरा उनका $multi-billion का बिजनेस चलता है। इसी के बीच अगर आप देखें उनसे बेटर, अगर इक्वल नहीं तो बेटर सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। अगर लोग, अगर एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स उनको डिस्कवर कर पाए इजीली, उनको मालूम हो उनके बारे में, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं उसका अडॉप्शन बढ़ेगा और धीरे धीरे आने वाले और सालों में उसका अडॉप्शन बढ़ पाएगा। तो एक जागरूकता मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, और अगर हम वो जागरूकता जो है ग्रास रूट लेवल पर ले जा पाए, जब एक स्टूडेंट जो एक कॉलेज में पढ़ रहा है उसको उसी वक्त वो जान पाए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा भी कुछ होता है, अगर, और ये जो चैलेंज जो है उसमें कहीं ना कहीं जरूर मदद करेगा अगर हम एक लार्जर कम्युनिटी के पास तक ये मैसेज पहुंचा पाए कि ऑल्टरनेटिव, फ्री ऑल्टरनेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं अदर देन द पेड सॉफ्टवेयर। तो कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को एक बहुत बूस्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, उसमें बहुत लंबे आने वाले लंबे समय तक कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसा मेरा सोचना है। राइट। अनुज जी, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त अगर इस सेक्टर की खास तौर से बात की जाए। अवेयरनेस तो है ये, लेकिन साथ साथ जो इसका मार्केटिंग है वो एक चैलेंज है जिससे हमें पार होना है। देखिए, ये जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो आप पहले इस चीज को बता चुकी हैं कि छात्र छात्राओं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अगर हम यूजीसी जैसी संस्थाओं की ओर से और सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की ओर से उनके सिलेबस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता दें, और उदाहरण के तौर पे जो हमारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े जैसे आधार का जिक्र आया है, ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, और लाइनेक्स जो कि अन्य कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम से भी अच्छा, सुरक्षा की और फंक्शनलिटी के दृष्टिकोण से भी माना गया है, जाना माना गया है पूरी दुनिया में, उसका ये माना जाता है कि वो एक बहुत अच्छा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो दूसरे उसके कॉमर्शियल काउंटर पार्ट है उनसे भी अच्छा है। तो अगर छात्रों को बचपन से ही, शुरू से ही ऐसे सॉफ्टवेयर की सुविधा दी जाए और उनके सिलेबस में इसको शामिल कर दिया जाए, तो इसकी मार्केटिंग की जो अदरवाइज जरूरत है वो कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग इसकी कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये कोई कमर्शियल एंटिटी तो है नहीं, ये तो सेल्फ प्रोपेल्ड है, कम्युनिटी के द्वारा चलता है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको तो सिर्फ या तो सरकार जैसी कोई संस्था इस पे अपना मार्केटिंग कर सकती है, प्रचार कर सकती है, या फिर इसको कॉलेजेस के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से उनके पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए, ताकि जब छात्र पढ़कर इंजीनियर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जहां भी वो काम करेंगे, तो उनको इसका एक तो अच्छा आइडिया होगा, समझ होगी, और दूसरा उनको किसी को इसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे कि अभी शुभेंदु जी ने भी बताया कि जैसे उन्होंने अपनी दूसरी जब स्टार्टअप शुरू की तब तक उनको इसके बारे में जानकारी हो चुकी थी, तो उन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल किया, पैसे भी बचाए और अच्छी फंक्शनलिटी भी प्राप्त की, जो कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर में कई बार नहीं होती है। पब्लिसिटी में ज्यादा बातें होती है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, जबकि ओपन सोर्स में चूंकि पूरी कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है और आपके पास अपना सोर्स कोड होता है, तो आप चाहें तो उसको एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। जबकि कमर्शियल सॉफ्टवेयर में जो सप्लायर है आपको जो फंक्शनलिटी वो देता है उसी पर आपको काम करना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी बन जाती है। यहाँ पर आपको ना सिर्फ बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलता है बल्कि उसका पूरा सोर्स कोड भी मिल जाता है। तो आपको अगर उसमें एनहांसमेंट करने हैं, चेंजेस करने हैं, या उसको पूरी तरह से अपने हिसाब से बनाना है, जैसे भारत में कुछ अपने तरह के चैलेंजेस हैं, जगह जगह लोग बनाना चाहते हैं, इनोवेटिव हैं, तो उनके लिए पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है और उसके लिए उन्हें कोई लंबी चौड़ी लाइसेंस फीस जैसी चीज देने की जरूरत नहीं है। कई बार सोर्स कोड कमर्शियल में भी अवेलेबल होते हैं, पर उसकी बहुत फीस लगती है। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर के लिए 20-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की फीस लग जाए तो उसके लिए अपनी स्टार्टअप चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे शुरू में फंड्स की बड़ी कमी होती है, बहुत दिक्कत आती है।
तो ये जो ओपन सोर्स है इसका प्रचार प्रसार स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल करके किया जाए तो हमें पब्लिसिटी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, इसके ऊपर भरोसा बढ़ेगा और भारत बहुत तेजी से ना सिर्फ आत्मनिर्भर, मैं तो ये कहूंगा कि निर्यात के लिए भी हम कई सारे अच्छे मॉड्यूल सॉफ्टवेयर बना पाएंगे और इसके अच्छे उदाहरण मौजूद हैं। आधार एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में जाना माना है। इतना बड़ा बायोमेट्रिक का डेटाबेस कहीं भी फंक्शनल नहीं है पूरी दुनिया में। कई लोगों ने, कई देशों ने प्रयोग किए लेकिन वो शायद उतने सफल नहीं हुए, जबकि हमने आईरिस और थंब दोनों को यूज करते हुए इसका प्रयोग किया है और बहुत सफलतापूर्वक ये चल रहा है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी है, सिर्फ उसको सही पर्सपेक्टिव में यंगस्टर्स के पास पहुंचाने की जरूरत है। Right. Coming to you, Mr. Abhishek ji, when we talk about something like the Aadhaar, although it's one of the world's largest biometric, database that is available in the world, but what about invasion of like concerns of privacy? How has the government sought to balance concerns of privacy with the need to have a database in order to provide welfare services to as many people as possible? Because this is about changing mindsets. Does the government look at this as a major obstacle that it has to overcome? See, it's very often the issue of privacy is raised by anyone and everyone whenever we talk about Aadhaar, without realizing the fact that Aadhaar is now operational in India for more than 10 years. Almost 98% of Indians have opted for Aadhaar. And the way Aadhaar functions, as per the directions of Honorable Supreme Court, as per the Aadhaar Act, which was envisaged, is that there is a consent framework which is defined. So whenever you are asked to give Aadhaar, there is a consent of the citizen is taken that whether you would want to verify your identity by giving your Aadhaar. If you say yes, then it's a 1 second process. eKYC is done, you get an OTP, or it's done immediately. There is no issue of any privacy in that regard. The second issue is that whenever you are opting for any welfare measure, then for the sake of ensuring coverage of everyone and for the sake of for prevention of any leakages, Aadhaar is used. So for welfare measures, the Supreme Court and the Aadhaar Act allows for uses of Aadhaar, and for any other application, it's a consent-based architecture. So like, for example, the health ID that you would be requiring in the National Digital Health Mission, if you agree to give your Aadhaar, you can get your ID instantly. If you are not willing to give your Aadhaar, then also you can get it, but it will require certain other documents. But when we are taking those certain other documents in lieu of Aadhaar, there also the issue of privacy is as important as the issue of privacy when Aadhaar is taken. So privacy is ensured not because whether I am taking Aadhaar or whether I am taking your PAN card or driving license or passport or any other identity paper. Privacy is ensured by the kind of systems that we have, for the kind of security architecture we have, the kind of firewalls we have, the kind of security practices we have. So once we have the right practices in place, privacy of data and security of data is ensured through those measures. Right. In India, it's like, to my mind and our experience has been that it's an unnecessary bogey. In the last 10 years, the Aadhaar database has been totally secure. Absolutely nobody's, any private information has been leaked, which has led to any loss of money or any loss of any service for any citizen. So that way, this is more hyped than anything else. And if you compare to other databases, like every day I hear that a Zomato database is breached, or a Big Basket database is breached, or some other Citibank credit card information is leaked on the dark web. So all the MobiKwik's database is leaked. So we hear database leakages from multiple other service providers, but we do not stop using them. Right. What we need to do is that every person needs to be careful in the way you use it. When you give a consent, it should be an informed consent. And that's how the security and privacy of Aadhaar is ensured. So going ahead, the same will be applicable for FOSS, and FOSS-based systems per se, I would say, are as secure, if not more, than any proprietary-based systems. If there is any breach that can happen, it happens because of faulty security practices, and it can happen in a proprietary system as much as it can happen in a FOSS-based system. So we can't assign the blame
for a system based on FOSS or on proprietary because of any security or privacy breach. That's a totally different issue, and we should not confuse these two different issues. राइट राइट। तो लब्बो लबाब अभिषेक जी की किसी भी सॉफ्टवेयर का यूसेज हो, किसी भी तकनीक का यूसेज हो, सही उसके प्रति सही शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है, और जो तमाम उसके रूल्स और रेगुलेशंस है साइबर सिक्योरिटी के अंडर जो आते हैं उनके प्रति आपकी जो नॉलेज है वो पूर्ण होनी चाहिए। तब आप हर किसी सॉफ्टवेयर पे आसानी से काम कर सकते हैं और उसका यूसेज कर सकते हैं और बेहतर परिणाम के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस चर्चा को इसी तरह से जारी रखेंगे, एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, और आज हमारी खास चर्चा हो रही है फॉस सॉफ्टवेयर पर, जिस पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अगर मैं आपके पास आऊं, हमने अवेयरनेस की बात की है, जागरूकता की बात की है, ग्रास रूट लेवल तक इसको पहुंचाने की बात की है, इसके प्रति ज़्यादा शिक्षित होने की जो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत को इस मूवमेंट की, अगर मैं बात करूं डिजिटल मूवमेंट की में आगे बढ़ना है, तो क्या ज़्यादा कोलैबोरेशन, एक मेंटरशिप और लिटरेसी, या फिर मैं कहूं पॉलिसी मेकिंग के रास्ते में भी आगे बढ़ना होगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर उठाया है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो आज अवेयरनेस है ही है। ये चीज आज स्थापित हो चुकी है कि भारत के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, दूर दराज के क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, टैलेंट तो अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पे उस टैलेंट को इस्तेमाल करना है, उसको मैच्योर करना है। तो एक तो हमें स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की और सॉफ्टवेयर की जरूरत है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस तरह से बने कि वो स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो सकें, ताकि जो लोग इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, सिर्फ स्थानीय भाषाओं में ही अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकें और उसको यूज करते हुए आगे इनोवेट कर सकें, नई नई चीजें बना सकें। तो एक तो ये बड़ी आवश्यक चीज है कि सभी स्तर पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सरकार के स्तर पर स्थानीय भाषाओं को सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाए, और सॉफ्टवेयर को सिर्फ इंग्लिश तक ही सीमित ना किया जाए, बल्कि उसे हमारी जितनी भी भारत की प्रमुख स्थानीय भाषाएं हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया जाए। दूसरी बात, हमें इन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को बच्चों को शुरू से ही, स्कूल से ही उनको मौका देना चाहिए। और इसके लिए आपने जो आज का एक टॉपिक रखा है ओपन सोर्स, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्कूल के स्तर पर अगर हम पेड सॉफ्टवेयर या कमर्शियल सॉफ्टवेयर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी स्कूल कॉलेज के लिए, स्कूली छात्र छात्राओं के लिए। फिर हम गांव तक, देहात तक और दूर दराज के क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर को और कंप्यूटर को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जो हमें डिजिटल इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भरता अपने पूरे देश में लानी है और एक इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है, वो फिर शहर तक और बड़े बड़े स्कूलों तक या बड़े बड़े संस्थाओं तक ही रह जाएगा। ओपन सोर्स के माध्यम से हम इसे दूर दराज तक बिल्कुल मुफ्त में समझिए ले जा सकते हैं, और हमारे सभी लोग, सभी छात्र छात्राएं, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्तर से आ रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की भाषा से आ रहे हो, वो सभी इस रेवोल्यूशन का, इस नए जो तकनीकी है, जो विकास हो रहा है, जो डिजिटल इंडिया आ रहा है, जो आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ रही है, उसमें शामिल हो पाएंगे। अभी हमारे देश के बहुत सारे लोग इस धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है और वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो अगर इन दो चीजों पर हम खास तौर पर ध्यान दें। राइट शुभेंदु, अगर मैं आपके पास आऊं, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रखा था कि जब आपने शुरुआती दौर में अपने बिजनेसेस की शुरुआत की तो कई चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आपको खरीदना पड़ा, आपने अपना मनी इन्वेस्ट किया। आपको लगता है कि बड़ी जो बिग टेक कंपनीज हैं
उनको भी आगे आना चाहिए इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करने में, इनको फाइनेंस करने में, इनको मोनेटाइज करने में? एब्सोल्युटली मैडम, ऐसा हो भी रहा है। बहुत लार्ज जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, अगर आप देखेंगे वो लोग अब ओपन सोर्स को सीरियसली ले रहे हैं और वो लोग इंटरनली और एक्सटर्नली अपना एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो लोग अब ओपन सोर्स को प्रमोट करना उन्होंने स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस चीज़ को रियलाइज कर रही हैं कि फ्यूचर कहीं ना कहीं अकेले खाली वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगी अगर वो अपनी मोनोपोली चालू रखेंगे। तो वो लोग इस चीज को रियलाइज कर रही हैं और हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जहां बड़ी बड़ी कंपनियां जब हैकेथॉन्स के माध्यम से और क्या नाम है और ओपन सोर्स इनिशिएटिव चला रही हैं, गिटहब जैसी वेबसाइट्स पे, जहां वो लोग चाहे गूगल को देखें, वो अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के द्वारा और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कंट्रीब्यूट, ना केवल कंट्रीब्यूट कर रही हैं बट कहीं ना कहीं प्रमोट भी कर रही हैं। तो अब वो लोग एक अपनी डुअल स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां उनके पास एक अपना पेड सॉफ्टवेयर है जो उसको प्रमोट करते हैं और उसी के साथ कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच के साथ वो लोग ओपन सोर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो एक अच्छा कदम है, एक पॉजिटिव कदम है इन लार्ज कॉर्पोरेशंस के द्वारा, बट कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा पुश चाहिए अगर हमें अपने एज अ कंट्री, अगर हमें अपने हितों को आगे रखना है तो हमें ओपन सोर्स की तरफ और स्पीड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और अडॉप्शन को और बढ़ाना पड़ेगा। Right, Shubhendu ji, very quickly, when we talk about privacy, we've also spoken about Abhishek, with Abhishek ji, but as a representative, he's a representative of the government. When we talk with somebody like you, is it just an apprehension in people's minds that we will be providing our information and perhaps, it'll be easier for the authorities to keep track of us more and more? So when we talk about a cultural shift, because there is another side to this. When we provide our information, we can also avail of more welfare services. So this cultural shift, is it a real obstacle? Is it or is it something that is just being speculated upon? Is it just a hypothetical question? According to me, the times that we are living in, the digital world, according to me, there is nothing that if somebody wanted to find out about you, can't find out. So there is nothing called you are absolutely living in a secure bubble or in the digital era. So this, according to me, you have already, like America or any other country would be knowing more about me rather than my own government, right? They have so high surveillance. If you go to a country, the kind of passport check that you have to go through when you're going to a first world country. So the kind of information they extract about you, you don't even have any, can't even imagine what sort of information they already have about you, even before you land into their, into their country. Talking about the current, specifics of Aadhaar and the other systems that the government is running, according to me, government needs to do a lot more confidence building programs where their own citizens can start trusting their systems, the systems that government is building for the welfare of the society and the citizens at large. They need to do a lot more in terms of building that confidence. At the end of the day, there is an angle of apprehension and a second layer thought comes to a common citizen that whatever information am I sharing with the government, is it safe with them? So I think that those double mind questions can only be addressed by government coming up and creating more awareness about the program, how secure their data is. They need to market and build those programs in the right way where they can tell the public that your information is safe, how they store it, what are the precautions taken care in order to store their data. I think with those steps coming forward and that atmosphere getting created of, okay, my data is secure with wherever I'm sharing, the people, the common citizen will be more comfortable and more open in utilizing the platforms such as Aadhaar and UPI and whatnot. So positive things are happening. A lot more need to be done, but I think we are in the right direction. That's my take on this. Right. So India moving forward on the path towards Atmanirbharta as far as innovation in information technology is concerned, with the launch of the FOSS Innovation Challenge on the 22nd of April. We were discussing about the journey so far, the development, the latest development and what it means with our guests joining us on Zoom and Skype. Thank you very much, Mr. Abhishek Singh, Mr. Anuj and Shubhendu as well for joining us and for all your inputs. Right. और आज के लिए बस इतना ही। आत्मनिर्भर भारत में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in.